Prime Minister Narendra Modi is in Moscow for the 22nd India-Russia summit. The two-day trip is Modi's first visit to Russia since the beginning of the war in Ukraine in 2022. On day one, Putin hosted a private dinner for Prime Minister Modi at his suburban residence of Novogaryovo. घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। On the second day of his visit, Prime Minister Modi will co-chair the 22nd annual India-Russia summit with the Russian President Vladimir Putin. The duo is scheduled to hold extensive talks, both one-on-one and with the delegations. Prime Minister Modi said in a social media post that the talks will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. And they appear to be yielding results already. In the latest and perhaps the first concrete outcome of the informal talks between the two, Russia has decided to facilitate return of all Indians working in the Russian army after the Prime Minister took up the matter with the Russian President Vladimir Putin. Till now, at least 4 Indians have been killed amid the ongoing Russia-Ukraine war. Earlier, Indian government sources had said that solution to the Ukraine-Russia war cannot be found on the battlefield. Big victory for India. Russia has agreed to discharge the Indians in the Russian army. The matter was raised by Indian Prime Minister Narendra Modi with the Russian President Vladimir Putin on Monday evening during an informal meeting. Both leaders had essentially this has been a contentious issue for India. Roughly around 35 to 40 Indians are believed to be in Russian army, and we know that India has been able to bring back 10 Indians to the country, while 4 Indians have been confirmed dead. But essentially, we know that this is a matter that India was raising in the past as well, including just last week when the Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar raised the matter with his Russian counterpart, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Now, essentially, we know that while this is a big development, today will be a big day. Today, of course, the India-Russia annual summit takes place here in Moscow. And we're cutting across to live visuals from Moscow, where in moments from now, the Indian Prime Minister Narendra Modi will be addressing Russia's Indian diaspora. Following the interaction, he will then lay a wreath at Kremlin's tomb of the unknown soldier. Prime Minister Modi will then visit the Rosatom Pavilion at an exhibition venue in Moscow. And these are live visuals from Moscow, where the Indian Prime Minister, in just moments from now, will be addressing the Russian Indian diaspora in Moscow. Well, according to data, there are around 14,000 Indians living in Russia. अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय राजदूत श्री विनय कुमार जी को कि वह यहाँ पर पधार कर हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। भारतीय समाज And that is the Indian envoy to Russia addressing the diaspora, Vinay Kumar, before Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the Indian diaspora, the Indian-Russian diaspora there in Moscow.
Well, the last time Prime Minister Modi visited Moscow was 9 years ago, and we can see a lot of enthusiasm there in the hall. Moments before the Indian Prime Minister addresses the Indian-Russia diaspora. Let's just take a listen. नमस्कार। प्रियत मोस्कवा, как дела? आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। वैसे साथियों, आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए
3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना सरकार का लक्ष्य है। तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं, आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं जब 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, तब कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप हुआ करते थे। आज लाखों में है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना?
वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है, आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। And that was Indian Prime Minister Narendra Modi addressing the India-Russia diaspora in Moscow. He highlighted India's fast growth trajectory and also spoke about his vision of making India the 3rd fastest economy in the world in his 3rd term, and also make 3 crore houses, further laying out his vision for Modi 3.0 government.